Hello and welcome. Welcome to learning session number 6 of chapter number 2, which is life processes in living organisms part 1. So far in this chapter, what all we have seen? We have seen introduction. We have revised important key terms and key topics related to this chapter, which we have learned in our previous classes. Then we had seen aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration, there were three important steps. First one was glycolysis, second one was TCA cycle or Krebs cycle, and the third one was electron transfer chain reaction. In anaerobic respiration, the first step was the same, which was glycolysis, and the second step was fermentation. Then we had seen how do we get energy from different food components like proteins, carbohydrates, lipids, vitamins, water, and fibers. The topic we're going to cover today is cell division, and cell division is basically of two types. One is mitosis and second one is meiosis. So we're only going to cover mitosis in this learning session. The new words we're going to learn today are somatic cells, stem cells, germ cells, centrioles, and condensation. Okay. So before we actually start our topic for the day, which is cell division or using mitosis, I want you to pause the video here and go through all of these 5 questions. Okay, go through all of these 5 questions and think of the answer before I start discussing the answers. So pause the video here, go through all the questions and think of the answers before I move ahead and start discussing the answers. Okay, so I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video and do that. Okay, I hope you all have paused the video and have some answer ready for all of the 5 questions. Okay, so now we're going to start discussing the questions. So the first question is, what happens to the cells of injured tissue? Okay, so जब भी कोई इंजरी होती है तो उस टिश्यू के सेल्स को क्या होता है? Okay, when someone gets injured, the cells in that particular tissue get damaged. तो अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गया तो उस टिश्यू के अंदर के जो सेल्स है वो भी डैमेज होने वाले हैं. ओके, इफ द इंजरी इज टू सिवियर, अगर बहुत ही ज्यादा बड़ी इंजरी है, बहुत ही ज्यादा गहरा जख्म है, देन इट मे कॉज सेल डेथ एंड द सेल्स में लूज देयर एबिलिटी टू रिपेयर देमसेल्व्स. अगर बहुत ही ज्यादा इंजरी हो गई तो सेल्स जो यहाँ के है उस टिश्यू के वो मर सकते हैं. द सेल्स कैन डाई एंड इफ द सेल्स डाई दे विल लूज द एबिलिटी टू रिपेयर. तो वो लोग खुद को रिपेयर नहीं कर पाएंगे अगर वो सेल्स मर गए तो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, whether new cells are formed during healing of wound. The answer is yes. जब भी तुम्हारे जख्म भर जाते हैं और तुम लोग का wound heal हो जाता है तब वहां पे नए cells form हो जाते हैं. Okay, next, do plants get injured when we pluck the flowers? How are those wounds healed? Okay, जब भी हम लोग किसी भी फ्लावर को तोड़ देते हैं तब उस प्लांट को इंजरी होती है क्या, और अगर इंजरी होती है तो कैसे ठीक होती है? So the answer is yes. Whenever you pluck a flower, यानी जब भी तुम लोग फूल तोड़ रहे हो किसी भी प्लांट से तब इंजरी होती है उस प्लांट को. ओके, नेक्स्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सुना सुना लग रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज the type of tissue we learnt in 9th grade biology. Okay, so meristematic tissue present in plants gives rise to new cells at the site of injury. So meristematic tissue से नए cells बनने वाले जहाँ पे भी इंजरी हुई है वहां पे, and help plants heal their wounds. और इससे वहां का जो wound है वो heal होने वाला है. ओके, वहां का जो जख्म है वो भरने वाला है प्लांट का. ओके, so that's your answer to third question. Fourth question, how does the growth of any living organism occur? कोई भी living thing है वो grow कैसे होता है साइज में? ओके, how does the number of cells in their body increase? उनके बॉडी में जितने सेल्स है उनका नंबर इंक्रीज होता है क्या? ओके, एंड इफ यस देन हाउ? अगर उनके बॉडी में सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो कैसे इंक्रीज होते हैं? सो द आंसर, ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकर्स बाय सेल डिवीजन. सो सेल डिवीजन से बॉडी ग्रो होती है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. yes, the number of cells in the organism's body increases. so जब भी ग्रोथ हो रहा है किसी भी बॉडी में तब उस बॉडी के अंदर के जो सेल्स है वो इंक्रीज होने वाले हैं. एंड लास्टली, while growing, the number of cells in
organism's body increases by mitotic cell division. तो यहाँ पे पूछा राइट, अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे तो कैसे इंक्रीज हो रहे? द आंसर इज माइटोटिक सेल डिवीजन से. सो आई टोल्ड यू राइट, सेल डिवीजन दो टाइप्स के है, माइटोसिस एंड मियोसिस. सो क्या बोल रहे हैं, माइटोसिस से वो नंबर इंक्रीज हो जाता है. सो this process we are anyway going to see in detail today. Okay, mitosis. Next, fifth question: how the new individual of a species is formed from existing one of same species. Okay, so already एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनने वाला है जो सेम स्पीशीज का है? दैट्स द क्वेश्चन. ओके, अगर ऑलरेडी एक स्पीशीज का कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें से एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा जो सेम स्पीशीज का है? सो दी वन वर्ड आंसर इज रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन से एक और ऑर्गेनिज्म, एक और इंडिविजुअल बनने वाला है सेम स्पीशीज का. ओके, लेट अस मूव अहेड. Cell division. So there are two types of cell divisions. They are known as mitosis and meiosis. Okay, so दो type कौन से? Mitosis and meiosis. Mitosis occurs in somatic cells and stem cells. So total somatic cells and stem cells. So कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी सेल जो रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है उसको बोलेंगे सोमैटिक सेल्स. ओके, आई विल रिपीट दैट. लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी सेल जो रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है उसको बोलेंगे सोमैटिक सेल. ओके, नोट अ स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स आर दो स्पेशल सेल्स इन योर बॉडी जो कोई भी दूसरे टाइप के सेल्स बन सकते हैं. तो अगर एक स्टेम सेल होगा तुम्हारे बॉडी में, दैट कैन ऑल्सो बिकम योर ब्रेन सेल, दैट कैन ऑल्सो बिकम योर हार्ट का सेल, they can also become your kidney ka cell. Okay, so it can become any type of cell, it can convert itself into any type of cell. So those are stem cells. So stem cells और somatic cells में कौन से टाइप का सेल डिवीजन होने वाला है? माइटोसिस होने वाला है. ओके, एंड मियोसिस किस में होने वाला है? जर्म सेल्स में. सो व्हाट आर जर्म सेल्स? जर्म सेल्स आर दोस जो ऑपोजिट सेक्स के सेल से कंबाइन होके सेल नया सेल बनने वाला है. ओके, सो जर्म सेल्स जनरली विल combine with cells of opposite sex and then reproduce. So that are those are germ cells. So germ cells में meiosis होने वाला है. And they have given a diagram of chromosome. If you remember, this diagram was there in a 9th standard textbook. Okay, this is called as chromosomes. और chromosomes को label करने बोला है. So I have given you all the answers here. Okay, so if you see यहाँ पे दो arms बन रहे हैं. ये ऊपर वाला आर्म V shape का और एक नीचे वाला आर्म N shape का या फिर A shape का. So ऊपर वाला आर्म जनरली थोड़ा शॉर्ट होता है, तो उसको पी आर्म बोलते हैं, और ये नीचे वाला जो आर्म है वो थोड़ा लंबा होता है तो उसको क्यू आर्म बोलते हैं. जो सेंटर में है उसको बोलते हैं सेंट्रोमर. और ये क्रोमोसोम किससे बना है? क्रोमोसोम ये जो पतला ट्यूब जैसा दिख रहा है डीएनए से बना है. ओके, सो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए. सो जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर किससे क्या बनता है, आई हैव आल्सो एडेड दिस टेबल हियर. ओके, सो इफ यू सी सबसे बड़ा चीज क्या होता है? सेल. सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, राइट? और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे. व्हाट आर क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ? क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए. एंड व्हाट आर डीएनए मेड अप ऑफ? डीएनए आर मेड अप ऑफ जीन्स. और जीन्स के अंदर क्या है? जीन्स के अंदर तुम्हारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है. so, तुम लोग के बाल स्ट्रेट होने चाहिए या कर्ली होने चाहिए? तुम्हारी आंख लाल होनी लाल नहीं होगी. तुम्हारी आंख ग्रीन होने चाहिए, ब्लू होने चाहिए, ब्राउन होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए. ऑल दैट इंफॉर्मेशन अबाउट योर बॉडी, about your genes, your genetic information, all of that information is stored in your genes. Okay, so genes make up DNA make up chromosomes, and chromosomes are inside your nucleus, and nucleus is inside your cell. So ये तुम लोग को पता होना चाहिए किससे क्या बन रहा है. Okay, next we are going to see mitosis. So mitosis में there are two major steps. Okay, first is karyokinesis. Okay, first one is karyokinesis, second one is cytokinesis. So just so that your pronunciation is correct, repeat these words after me while you watch the video. Okay, so first karyokinesis, karyokinesis, cytokinesis, cytokinesis. Okay, so karyokinesis and cytokinesis. So karyokinesis में क्या होने वाला है? न्यूक्लियर डिवीजन. न्यूक्लियर डिवीजन यानी सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को डिवाइड करने वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे कैरियोकिनेसिस. फिर बाद में न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर वे अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स है, अलग अलग सेल के ऑर्गन्स है, और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म है. सो साइटोकिनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होने वाला है. ओके, and in karyokinesis there are four types again. Okay, first type is
टाइप्स नहीं, 4 स्टेप्स है. So first step is prophase, second is metaphase, third is anaphase and last is telophase. Okay, so ये 4 steps है karyokinesis में: prophase, metaphase, anaphase, telophase. And we're going to see each of these steps in detail in the next few slides. Okay, so first step is in mitosis is prophase. Okay, so प्रोफेज से पहले भी एक इंटरफेस होता है. ओके, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दे ही दिया है. ओके, प्रोफेज से पहले होता है इंटरफेस. सो इंटरफेस में क्या होगा, इंटरफेस पे तुम्हारा न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से दिखेगा. ओके, सो न्यूक्लियस के अंदर ये जो पर्पल कलर के थ्रेड्स दिख रहे हैं वो बेसिकली तुम्हारे क्रोमोसोम्स है. बट क्रोमोसोम्स तुम लोग ने क्या देखा है, क्रोमोसोम्स का शेप तो ऐसा होना चाहिए, राइट? यहाँ पे जैसे दिखा रहे क्रोमोसोम्स का शेप ऐसा होना चाहिए. बट इंटरफेस से ये सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम ऐसा दिखता है इस शेप में. बट जनरली इंटरफेस में यानी प्रोफेस से पहले वाले स्टेज में वो इस तरीके से नहीं दिखता, वो ऐसा थ्रेड जैसा दिखेगा न्यूक्लियस के अंदर, एकदम बिखरा बिखरा. ओके, और उसके बाहर एक सेंट्रियोल नाम का ऑर्गन दिखने लगेगा इंटरफेस में. इंटरफेस क्या है, प्रोफेस के पहले वाला स्टेप, इससे पहले वाला स्टेप जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया. सो इंटरफेस में ऐसा दिखने वाला है तुम्हारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर एक नया ऑर्गन दिखना शुरू हो जाएगा जिसका नाम है सेंट्रियोल. ओके, so first point, condensation of thin thread like chromosome starts. so ये जो क्रोमोसोम्स अभी थ्रेड जैसा दिख रहा है, पतले से धागे जैसा दिख रहा है, वो लोग अभी कंडेंस होना शुरू होंगे. कंडेंस होना मतलब क्या, कंडेंस होना यानी शॉर्ट हो जाना, साइज कम हो जाना, उसको बोलते हैं कंडेंस करना. ओके, शॉर्ट हो जाना, कम साइज होना. सो इनका साइज कम होने लग जाएगा. सेकेंड, दे बिकम शॉर्ट एंड थिक, तो इनकी लंबाई कम होने लगेगी और वो जाड़े होने लगेंगे. क्या, क्रोमोसोम्स की बात हो रही है यहाँ पे. एंड दे स्टार्ट टू अपीयर अलोंग विद देयर पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स. सो इस शेप से, थ्रेड लाइक शेप से, अभी ये हमने जो डायग्राम में देखा था उस शेप का दिखेगा. सो यहाँ पे ऊपर वाला जो है और नीचे वाला जो है वो सेम दिख रहा है, राइट? ऊपर 2 हाथ है और उसी तरह नीचे 2 हाथ है. सो इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स. ये क्रोमैटिड होगा और यहाँ पे नीचे जो फॉर्म हो रहा है वो एक क्रोमैटिड होगा. ओके, सो दिस एंड दिस आर नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स. ओके, सो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जैसा दिखने लगे किसमें, प्रोफेज में. ओके, नेक्स्ट, give me a minute. Okay, next, centrioles duplicate and each centriole moves to the opposite poles of the cell. सो प्रोफेज से पहले जो इंटरफेस था उसमें सेंट्रियोल दिखना शुरू हो जाएगा. सेंट्रियोल सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम दिखने लगता है. ओके, जनरली वो न्यूक्लियस के आजू बाजू नहीं दिखेगा. सो इंटरफेस में सेंट्रियोल दिखने लगेगा. सो प्रोफेज में क्या होने वाला है, डुप्लीकेट होने वाला है. तो यहाँ पे एक ही सेंट्रियोल था, उसके अभी 2 सेंट्रियोल हो गए. यहाँ पे एक आ गया और एक यहाँ पे आ गया. एंड दे मूव टू ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल. तो वो दोनों ऑपोजिट साइड में मूव करना शुरू हो जाएंगे. किसके ऑपोजिट साइड में, सेल के. ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर. तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे, यहाँ पे न्यूक्लियस के आजू बाजू एक मेम्ब्रेन दिख रहा है, राइट? न्यूक्लियस का कलर अलग दिख रहा है और बाकी सेल का कलर अलग दिख रहा है. बट प्रोफेज में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब होना शुरू हो जाएगा. सो इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस के आजू बाजू जो एक लेयर है उसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो ये अंदर का जो कुछ भी मटेरियल है वो सेल के अंदर दिखने लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियस का कोई बाउंड्री नहीं रहेगा. ये सारी चीजें होती है प्रोफेज में. ओके, सो द next step in mitosis is metaphase. Okay, so what is going to happen in metaphase, nuclear membrane completely disappears in metaphase. so prophase में न्यूक्लियस का जो बाउंड्री था वो धीरे धीरे गायब होने लग गया था. मेटाफेज में पूरी तरीके से वो गायब हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स complete their condensation and become clearly visible. so क्रोमोसोम्स वो जो धागे जैसा था, पतले से धागे जैसा दिख रहा था, उनका कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा और एकदम परफेक्ट वो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स वाला शेप है उसमें दिखने लगेंगे, एकदम क्लियरली दिखने लगेंगे क्रोमोसोम्स और उनका शेप. नेक्स्ट, ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन और सेंट्रल प्लेन ऑफ द सेल. सो अगर तुम ये पूरे के पूरे सेल को एक अर्थ की तरह समझो तो इसका इक्वेटर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, राइट? यहाँ पे सेंटर में उसका इक्वेटर आएगा, या उस इक्वेटर को तुम सेंट्रल प्लेन भी बोल सकते हो. ओके, क्योंकि वो सेल के एकदम सेंटर में. सो इक्वेटोरियल प्लेन या सेंट्रल प्लेन पे सारे क्रोमोसोम्स अपने आप अरेंज होने लग जाएंगे. किसमें, मेटाफेज में. नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट फॉर मेटाफेज, स्पेशल टाइप ऑफ
flexible protein fibers or spindle fibers are formed between centromer of each chromosome on both centrioles. Okay, so एक नए टाइप का फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर या फिर इसको स्पिंडल फाइबर्स ही बोल सकते हो फॉर्म हो जाते हैं. तो यहाँ पे ऐसा डॉट डॉट लाइंस जो दिख रहे हैं तुम लोग को सेंट्रियोल से लेके सेंट्रियोल तक, दोज आर दोज स्पिंडल फाइबर्स. ओके, ये क्या है? फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स है. ओके, सो ये फॉर्म हो जाते हैं. किसके बीच में फॉर्म होते हैं? बिटवीन सेंट्रोमर ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड बोथ ऑफ द सेंट्रियोल्स. तो सेंट्रोमर क्या है? क्रोमोसोम का सेंटर, राइट? सो यहाँ पे एक सेंट्रोमर है, यहाँ पे एक सेंट्रोमर है, यहाँ पे एक सेंट्रोमर, यहाँ पे एक सेंट्रोमर. तो उससे पास होगा वो और कहाँ पे जाके ज्वाइन होगा? दोनों सेंट्रियोल्स पे जाके ज्वाइन होगा. सो ये लिखा है फोर्थ पॉइंट पे. ओके, सो इज योर मेटाफेज. नेक्स्ट इज एनाफेज. Okay, so in anaphase, first point is centromer split. Okay, so if you see यहाँ पे centromer जो है वो दो हो गए. पहले जब एक ही क्रोमोसोम था तो बीच में सिर्फ एक ही सेंटर पे सेंट्रोमर था. अभी वो दो सेंट्रोमर बन गए, स्प्लिट हो गए, अलग अलग हो गए. एंड देयर बाय सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट. सो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो सेपरेट होने लग जाते हैं. ये ऊपर वाला सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर चला जाता है, नीचे वाला सिस्टर क्रोमैटिड नीचे आने लग जाता है. ओके, सो सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड दे आर पुल्ड अपार्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं. एक सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर, जो दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड नीचे. और ये किसकी वजह से पुल हो रहे हैं? दे आर बीइंग पुल्ड बिकॉज ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. तो ये जो डॉटेड लाइंस है, जो फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स है, उसकी वजह से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल हो रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स आर कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम्स. तो अभी ये सेपरेट होने के बाद इनको हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग डॉटर क्रोमोसोम्स बोलेंगे. तो ये एक डॉटर क्रोमोसोम, ये दूसरा डॉटर क्रोमोसोम. सिमिलरली ये एक डॉटर क्रोमोसोम, ये दूसरा डॉटर क्रोमोसोम. ओके, next chromosomes are being pulled. Chromosomes being pulled appear like bunch of bananas. तो इनका शेप कैसा हो जाता है? बनानास की तरह हो जाता है. If you see, they are looking like banana shaped, right? In this way, each set of chromosomes reach at two opposite poles of the cell. So ये जो अलग अलग क्रोमोसोम्स के टुकड़े हो गए वो ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं, सेल के ऑपोजिट साइड्स पे पहुंच जाते हैं. दिस इज योर एनाफेज. ओके, next and the last phase of karyokinesis is telophase. Okay, so in telophase, the chromosomes which have reached at opposite poles of the cell now start to decondense, due to which they gain. Okay, first let me just explain that point. Okay, so यहाँ पे जो ऑपोजिट पोल्स पे क्रोमोसोम्स पहुंच गए, एक ऊपर पहुंच, कुछ क्रोमोसोम्स ऊपर पहुंच गए और कुछ क्रोमोसोम्स नीचे पहुंच गए. सो ये अब डीकंडेंस होंगे. डीकंडेंस होना यानी कंडेंसेशन का क्या मतलब था? कंडेंसेशन का मतलब था साइज में कम हो जाना, छोटा हो जाना. तो डीकंडेंसेशन उसका उल्टा होगा, साइज में बड़ा हो जाना. ओके, सो डीकंडेंसेशन यानी वापस अभी बड़े होने लग जाएंगे. सो जो अभी अच्छे शेप में दिख रहे थे वो भी वापस थ्रेड लाइक शेप में होने लगेंगे. सो बिकॉज ऑफ डीकंडेंसेशन they again become thread like and thread like thin and invisible. So धागे जितना पतला होने लग जाएंगे क्रोमोसोम्स और वापस दिखना बंद हो जाएंगे, इनविजिबल हो जाएंगे. नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच्ड एट द पोल्स. सो ये जो ऊपर क्रोमोसोम्स बन गए, पहुंच गए, उसके आजू बाजू एक न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन बन जाएगा. न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अगेन व्हाट इज इट? न्यूक्लियस का बाउंड्री. ओके, और यहाँ पे नीचे जो क्रोमोसोम्स बन गए उसके आजू बाजू भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी. तो जो भी सेपरेट हो गए क्रोमोसोम, उसके आजू बाजू एक बाउंड्री आना शुरू हो जाएगी टेलोफेज में. लास्ट 10 टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म इन अ सेल. सो इसकी वजह से दो डॉटर न्यूक्लियाई, तो छोटे छोटे दो न्यूक्लियस फॉर्म हो गए एक सेल के अंदर. स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीटली डिसअपियर. सो ये जो सेंट्रियोल थे, ऊपर का एक सेंट्रियोल और नीचे का एक सेंट्रियोल, उसमें से जो स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे थे और जो दोनों को कनेक्ट कर रहे थे वो अब डिसअपियर हो जाएंगे, इनविजिबल हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे. ओके, सो ऑल दिस इज हैपनिंग इन टेलोफेज. ओके, सो अब तक हमारा कैरियोकिनेसिस खत्म हो गया. ओके, वी आर डन विद कैरियोकिनेसिस. बट अभी भी पूरा का पूरा सेल खत्म नहीं हुआ. सेल के अंदर बस दो छोटे न्यूक्लियस बने, सेल अभी तक डिवाइड नहीं हुआ. ओके, सो देयर आर 4 स्टेप्स इन कैरियोकिनेसिस एंड उसको मैंने शॉर्ट में क्या लिखा है? आई एम
IPMAT. ओके, सो आई जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, इंटरफेस, P फॉर प्रोफेस, M फॉर मेटाफेस, A फॉर एनाफेस, T फॉर टेलोफेस. तो इसको तुम लोग, अगर तुम लोग को अच्छे से याद रखना है इजी वे में, सो द वे आई हैव, मैंने किसी वीडियो में देखा था एक, जो फुल फॉर्म है इसका, सो उसका फुल फॉर्म है आई प्रिफर मलयालम एंड तमिल. ओके, I prefer Malayalam and Tamil. So I for interface, P for prophase, M for metaphase, A for anaphase, T for telophase. In this way you can remember. So let's remember, जब भी तुम लोग एक लंबा लंबा कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, 4-5 स्टेप्स है या फिर 6-7 अलग अलग टर्म्स है जो एक के बाद एक आते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो उसको तुम लोग को इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में बना के उसके ऊपर कोई ना कोई एक लंबा सा सेंटेंस बनाना है जो तुम्हें बहुत अच्छे से याद रहेगा. सो मैंने उस वीडियो में एक बार देख लिया, आई प्रिफर मलयालम एंड तमिल, मुझे अपने आप याद हो गया, तो मुझे अभी वापस बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है. अगर मैं बाय हार्ट करूंगा 2-3 दिन में भूल जाऊंगा, बट आई प्रिफर मलयालम एंड तमिल इतना अजीब सेंटेंस है और इतना हटके सेंटेंस है कि मुझे बहुत टाइम तक याद आएगा. तो ये तुम लोग खुद के लिए भी बना सकते हो अपने आप से. जो कुछ भी लंबा लंबा लिस्ट होगा तुम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म्स बना के, ऐसे अजीब अजीब सेंटेंस बना के, जितना अजीब सेंटेंस होगा, जितना हटके और मजेदार सेंटेंस होगा, उतना इजीली याद रहेगा. और जितना इजी, जितना ऑर्डिनरी, जितना मंडेन सेंटेंसेस बनाओगे, उतना डिफिकल्ट होगा याद करने के लिए. ओके, सो यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस ऑल्सो. आई एम गोइंग टू यूज आई प्रीफर मलयालम एंड तमिल. सो दीज आर द 4 स्टेप्स फॉर कैरियोकिनेसिस. तो अब तक सेल के अंदर बस 2 न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है, पूरा सेल डिवाइड नहीं हुआ. So next step is cytokinesis. Okay, so the cytoplasm divides by cytokinesis. तो सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म होता है वो अब डिवाइड होने वाला है, किसके थ्रू? साइटोकिनेसिस के थ्रू. एंड फिर जब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया, दोनों जब चीजें डिवाइड हो गया, तब टू न्यू सेल्स आर फॉर्म विच आर कॉल्ड डॉटर सेल्स. तो पिछले वाले स्टेप में टेलोफेज में, इफ यू सी, टेलोफेज में 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हुए थे, बट साइटोकिनेसिस के बाद डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे. सो न्यूक्लियस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सेल, राइट? सो पहले डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद 2 डॉटर सेल बन जाएंगे. ओके, सो वुंड हीलिंग, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल एटसेट्रा टेक्स प्लेस यूजिंग माइटोसिस. तो हमारी बॉडी में जो कुछ भी जख्म ठीक हो रही है या फिर हमारे ब्लड सेल्स बन रहे हैं, वो सब कौन से प्रोसेस से बन रहे हैं? वो सब माइटोसिस, यस, माइटोसिस टाइप सेल डिवीजन से बन रहे हैं. ओके, so that's it for this learning session. These are the new words we learned today. First is somatic cells, yani any cell of a living organism other than the reproductive cell. तो reproductive cell नहीं होना चाहिए वो. Okay, so that is your somatic cell. पता नहीं आज क्यों बार बार थैंक यू दिखा रहा है, अपने आप आगे चला जा रहा है स्लाइड. ओके, बट थैंक यू के लिए अभी भी टाइम है. ओके, लेट अस फिनिश दिस स्लाइड फर्स्ट. स्टेम सेल्स मैंने क्या बोला था? स्टेम सेल्स आर ह्यूमन सेल्स दैट आर एबल टू डेवलप इनटू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. तो ऐसा सेल जो अलग अलग टाइप के सेल्स बन सकते हैं, ब्रेन सेल्स बन सकते हैं, किडनी सेल्स बन सकते हैं, लिवर सेल्स बन सकते हैं. सो स्पेशल सेल्स को स्टेम सेल्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज जर्म सेल्स. जर्म सेल्स आर सेल्स व्हिच आर एबल टू यूनाइट विद वन फ्रॉम द ऑपोजिट सेक्स टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल. तो ये दूसरे ऑपोजिट सेक्स के सेल से कंबाइन होके नया इंडिविजुअल बन जाएगा. एंड सेंट्रियोल हम लोग ने देखा था. सेंट्रियोल्स वो सेल के ऑर्गन्स है विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स दैट सेपरेट द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन के दौरान वो जो डॉटर क्रोमैटिड्स को सेपरेट कर रहा है वो स्पिंडल फाइबर्स की वजह से हो रहा है. स्पिंडल फाइबर्स किसने बनाया? सेंट्रियोल्स से बना है. तो सेंट्रियोल्स का ये काम है. ओके, एंड द लास्ट वर्ड इज कंडेंसेशन, आई थिंक. यस, सो लास्ट वर्ड इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन मतलब साइज को रिड्यूस करना. उसका ऑपोजिट क्या है? डीकंडेंसेशन. ओके, या फिर डीकंडेंस, उसका मतलब है साइज को वापस बड़ा करना. सो दीज आर द वर्ड्स वी लर्नड टुडे. एंड नाउ थैंक यू. That's it for this learning session, and I hope you all understood mitosis. Make sure you are copying all the tables well, और उस टेबल को अच्छे से याद कर लो. एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज कि इस स्टेप में क्या क्या चीजें हो रही है, उस स्टेप में क्या चीजें हो रही है, फिर अगले स्टेप में क्या चीजें हो रही है. एंड इफ यू रिमेंबर यूजिंग डायग्राम्स तो और भी इजी हो जाएगा. ओके, सो इफ यू सी, लेट मी गो बैक, नॉट थैंक यू येट.
यहाँ पे मैंने तुम लोग को बोला डू नॉट कॉपी, राइट? सो ये जो लिखा हुआ है वो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बट आई वुड से आई वुड हाईली रिकमेंड तुम लोग ये डायग्राम्स कॉपी कर लो. ओके, सो कॉपी दीज डायग्राम्स बिकॉज द डायग्राम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक आर नॉट वेरी क्लियर. सो डोंट राइट ऑल दिस, बट कॉपी दीज डायग्राम्स इन योर नोटबुक. इट विल हेल्प यू. तुम लोग इस डायग्राम से ही पूरा जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको याद कर सकते हो. डायग्राम अच्छे से याद कर लिया तो. So yeah, Abhi, final thank you. Hope you'll understand whatever we learned today in this learning session, and see you all in the next learning session. Peace.